Hi everyone, welcome back to my channel. This is Neha. How's you all? In today's video, I'm going to compare two viral and most affordable tinted moisturizers, जो कि I think सबकी वेंटी में होते ही हैं. Tinted moisturizer सबको ही लगाना पसंद होता है because they provide you instant flush and glow on your skin. And why I want to compare these two tinted moisturizers because this one, the Swiss Beauty one, is quite popular. This is an old school product जो कि आपको हर किसी की वेंटी में मिल ही जाता है except mine. मैंने इसको अभी ही नया खरीदा है. मेरे पास था इसका दूसरे वाला इल्यूमिनेटर पर्ल इल्यूमिनेटिंग बेस मेकअप दिस वन. ये तो मैंने बहुत ही ज्यादा यूज करा है एंड इट इज रियली गुड वन, बट आई रियली वांटेड टू ट्राई आउट दिस वन एज वेल एज आई वांट टू कंपेयर इट विद द न्यूली लॉन्च्ड Pilgrim Illuminating Moisturizers, because this can also be used underneath makeup. So I thought why not compare these two with each other, because अगर किसी को लेना होगा तो वो कंफ्यूज ना होगा. दिस इज अ हाइलाइटिंग प्राइमर. व्हाई आई एम कंसीडरिंग इट मॉइस्चराइजर, बिकॉज मैंने जितने भी रिव्यू सुने हैं इसके बारे में, एवरीवन सेज दैट इट वर्क्स एज अ गुड illuminating moisturizer and no one says that it does work on the pores, because it is mentioned over there that it modifies pores, but no one reveals about it. So that's why I thought of let's consider it our illuminating moisturizer. ये मेरी मर्जी है. देखो ये मेरा मानना है. हो सकता है कि ये पोर्स के ऊपर काम करता हो, लेकिन मैंने जितने भी रिव्यू सुने हैं, आई डिडंट फाइंड एनी वीडियो व्हिच टॉक्स अबाउट दैट इट वर्क्स ऑन पोर्स एज वेल. So I thought this is a wise idea to compare these two illuminating moisturizers. It is a moisturizing primer जो कि आप अंडरनीथ बेस मेकअप के यूज कर सकते हो, और इसको काफी लोग यूज करते हैं. काफी क्या, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं. ये वाला तो यार मैंने ट्राई करा है एंड दिस वन रियली गुड. इसका जो आफ्टर इफेक्ट है बहुत ज्यादा अच्छा है. इट कैन बी यूज्ड एज मॉइस्चराइजर, इट कैन बी मिक्स्ड विद फाउंडेशन, it can be applied as highlighter, you can even mix it with your blush, even you can do all these things with this moisturizer as well. But लेट्स कंपेयर इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, बिकॉज रिसेंटली मैं सिक्स ने पूछा था कि यार कौन सा इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर अच्छा है, तो आई थॉट व्हाई नॉट कंपेयर दीज टू, बिकॉज दे आर हाईली पॉपुलर. दिस वन इज रियली वायरल दीज डेज एंड दिस इज द लाइक, ये तो आपको हर घर में मिल जाएगा. जिसको भी मेकअप का शौक होगा, जिसको भी एक इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट अच्छा लगता होगा, ऑब्वियसली इसके पास ये प्रोडक्ट जरूर होगा, बिकॉज इट्स क्वाइट अफोर्डेबल. इफ आई टॉक अबाउट द स्विस ब्यूटी वन, इट हैज वाटर माइका पॉलीग्लाइसरीन hexanidol, it has jojoba seed oil as well, it has all moisturizing agents in it जो कि ब्राइटन अप करता है हमारे स्किन को, पोर्स को मॉडिफाई करता है, मॉइस्चराइजिंग है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द पिलग्रिम illuminating moisturizer, it has SPF 15 as well, and the main ingredient in this moisturizer is Australian cacao plum, which is a source of vitamin C, which brightens up your skin and provides radiance to the skin. It is also called green plum as well. And if I talk about the shades, I do have an O3 pink tint of Swiss Beauty and rose glow of Pilgrim one. It comes in the glass packaging and it comes in the plastic packaging. I think this is more convenient as compared to this one, and it has a shelf life of 4 years. It has a shelf life of 2 years. It retails around under 400 rupees. It retails around 445 rupees, and इस पे डिस्काउंट भी नहीं लगता, और इस पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है. यार क्यों भैया आप सब्जी बेचने आ गया है. And the quantity of the both same, but I feel like it has less quantity as compared to this, because ये देखने में ही ज्यादा लग रहा है, और इसको भी मैंने थोड़ा सा ही लगाया तो मुझे जो बॉटल है वो खाली खाली लगना शुरू हो गया है. गॉड नोस कि क्या लोचा है, बट ओके फाइन. सो नाउ लेट्स first see the texture of both the moisturizers. Let's swatch on the back of the hand. I'm taking the one pump only. This is a Swiss Beauty one, Pilgrim one. It has, I think, two variants, and Swiss Beauty one has three variants, but I choose pink one. This is Pilgrim and this is Swiss Beauty one. Half of the hand में spread करती हूँ. इसका जो फील हाथ पे आ रहा है दैट इज ऑफ लाइक प्राइमर काइंड ऑफ. यस, इसमें ना एक स्टिकी सा फील आ रहा है थोड़ा सा, एंड दिस इज द effect on the back of the hand. It does have chunky particles, but they are very fine, which are hard to see with naked eyes. बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, तब आपको जो थोड़े बहुत जिसके पार्टिकल्स हैं वो दिख जाएंगे. अब मैं अपने हाथ को साफ कर लेती हूँ. More on moisturizing side, because I am literally feeling कि ये बहुत ज्यादा moisturizing है. बैक ऑफ द हैंड पे इतना ज्यादा अच्छे से पता नहीं चलेगा, मैं अभी फेस पे लगा के आपको दिखाती हूँ. या देखो लगाने के बाद दोनों का फील तो एक जैसा ही आ रहा है. ये देखो ना, इस पे ज्यादा पता चलेगा कि इट इज मोर ब्राइटनिंग एंड इट इज क्वाइट ड्राई. थोड़ा सा टोनर लगा लेती हूँ. आई एम यूजिंग डालबा फर्स्ट स्प्रे सीरम. मैं इसका भी रिव्यू करने वाली हूँ जल्दी. समर्स में ना ऐसे ही प्रोडक्ट्स लगाने का मन करता है. फाउंडेशन तो ऑब्वियसली टिकती ही नहीं है. मैंने ये डेल्बा का स्प्रे सीरम इसलिए यूज करा है सो दैट कि मेरा जो फेस है उसके ऊपर मैं कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई ना करूं. I would take only one pump.
ये लगाने में ना थोड़ा सा वो है, लाइक वैक्सी काइंड ऑफ यू कैन से, और ये क्योंकि एक प्राइमर का भी काम कर रहा है, सो दैट्स व्हाई ये थोड़ा सा प्राइमिंग साइड पे तो है, लेकिन एक इल्यूमिनेटिंग प्राइमर आप बोल सकते। आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन बट स्टिल आई थिंक इट इज गोइंग गुड विद माई स्किन। इसका जो इफेक्ट है वो काफी अच्छा आया है, नो डाउट। बहुत ही कम चंकी पार्टिकल्स है जो कि बहुत आप ऐसे ध्यान से देखोगे तब आपको जाके दिखेंगे, टाइनिएस्ट बोल सकते हो आप। मुझे नहीं लगता कि पोर्स के ऊपर सच में कोई काम कर रहा है। इट इज अ मॉइस्चराइजिंग प्राइमर और मॉइस्चराइजर, इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर यू कैन से, ऐसा ही फील आ रहा है। नाउ लेट्स अप्लाई पिलग्रिम वन एंड इट इज वेरी मॉइस्चराइजिंग। ये लिटरली ना मॉइस्चराइजर है, लेकिन कि वो लगाने में जरा सा थोड़ा सा स्टिकी है एज कम्पेयर टू दिस वन, बट वेरी माइनर वन। और लगाने के बाद जो दोनों का फील है वो मुझे काफी सिमिलर लग रहा है। लेकिन ओके, फर्स्ट आप देखिए, फिर मैं बताती हूँ कि मुझे मेन डिफरेंस इनमें क्या दिखा। छोटे छोटे चंकी पार्टिकल्स आपको दिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत चमकता हुआ। लेकिन अगर मैं पिलग्रिम की बात करूँ तो इसमें कोई भी no chunky particles, not at all. I just noticed one thing, might be it is a moisturizer, so that's why लगाने के बाद जो इसका इफेक्ट है ना वो 50% रिड्यूस हो गया है, जो इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट है, बट इट इज परसिस्टेंट। लुक, I hope you can see. ये इसमें थोड़ी सी चमक अभी भी है. It is more brightening as compared to this one. The time I applied this real makeup base, it was quite illuminating. Visible see the chunky particles, जो कि देखने में बुरे नहीं लग रहे हैं, but when it comes to the comparison, it is noticeable. No doubt it is moisturizing, but brightening effect इसमें कम है as compared to this one, and the price range is also same. बहुत सारे लोग इसको बहुत पसंद करते हैं. I'm not saying this is not a good one. It is more at मैटिफाइंग साइड, बट इसका इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट तो कम नहीं होना चाहिए ना, वो तो उतना ही रहना चाहिए। ऑब्वियसली जब भी हम मेकअप अप्लाई करते हैं तो इसको लगाने के बाद लोग जनरली मेकअप अप्लाई कर लेते हैं, तो माइट बी तब हम इतना नोटिस नहीं कर पाते हैं, लेकिन यू कैन सी इसका इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट अभी भी है। एंड here it is moisturizing but not that much illuminating. कुछ नहीं किया इसने पोर्स के ऊपर भी कुछ किया नहीं है, बस एक इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करी है फेस को, और इसने भी ये ही किया है। सो आई वुड से ऑब्वियसली अगर आपको ऐसा कुछ लेना है तो यू कैन ट्राई दिस वन, दिस इज बेटर वन एज कम्पेयर टू दिस वन। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि मैंने इधर कुछ भी नहीं लगाया हुआ, सिर्फ कुछ चंकी पार्टिकल्स इधर उधर चमक रहे हैं और कुछ भी नहीं है। मॉइस्चराइजिंग है नो डाउट, बट इट इज नॉट एट ऑल ब्राइटनिंग आफ्टर 1 or 2 minutes. According to me, after foundation application, this one is more brightening as compared to this. You can visibly see. And I applied same amount of the foundation. It is inside ultra thin second skin foundation. I will mix this one in liquid blush. Application is really smooth, but we have to find out the final effect. Look, it is looking so beautiful, but let's use it with the Pilgrim one. I'm taking that much of the, but I'm taking the same amount of the blush. And a little bit of the moisturizer. It is mixing with makeup products very well. They both are working good with the liquid blushes. It is really subtle, but it is something extraordinary, you can say. I'm liking this one. I will set it with the powder little bit. For that, I'm using NY Bay. They both are looking good, no doubt. But I can see chunky particles here. No chunky particles here. Now, finally, I will apply it as a highlighter. This is a Swiss Beauty one. From here, they both are looking so good, but when it comes to comparison, this side is more illuminating as compared to this side. No one would even find out that you have applied any kind of foundation, even a second skin kind of. It has an ultra illuminating effect on the face, जो कि आप डेली बेसिस पे डेफिनेटली कैरी कर सकते हो। नो डाउट स्विस ब्यूटी वन वाला भी अच्छा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस पिलग्रिम वन इज मोर गुड एज कम्पेयर टू
Swiss Beauty One. I think you do not need to apply any other highlighting product on your face after using this. It doesn't mean that if you have Swiss Beauty One तो आपको उसको फेंक देना है, ऐसा कुछ नहीं है. इसको finish करिए and try your hands on this one. This is a good one. No doubt this is a good one. You can carry this illuminating moisturizer on daily basis without any doubt. So this is what I just want to say about these two products. If you would have any query, please comment down below. I'll meet you soon in the next video. Till then, bye bye. Take care.